A very good afternoon to all senior officers joining this session from Rajasthan state as well as from other state, all other delegates. The topic of our session is modernizing the transport sector through digital innovation to build trust, accountability, and delightful customer experience and enhancing road safety. In fact, transport sector is a too big sector. It involves many more things. So, discussing on different thing like trust, accountability, and delightful experience to the different customers, we should definitely know about who all are the entity involved in this transport sector. So, citizen is the first, which using the vehicles for transportation. Then government agencies who deals with the, having different regulations and enforcementing those transport things. Then there are insurance agencies, vehicle manufacturers, and there are some other manufacturers like VLTT device manufacturer, CNG device manufacturer, then this SLD means speed limiting device manufacturers. From NIC, I am Avnesh Sharma, Senior Technical Director. I am looking after an e-transport project only. In transport project, we have developed a complete ecosystem which is having everything related to transport. It starts from manufacturing of the vehicle till its end life. Means it goes registration, then when it is traveling on a road, then having the PUCC certificate, getting insurance validity, fitting, there is fitness thing, so getting the fitness certificate, and now we are coming with the RFC centers where that on end of the life that vehicle can be scrapped and it could be user can gain some things. So today we have a very eminent panel of for discussion. Sri Kanhaiya Swamiji, Transport Commissioner, Rajasthan. We have Sri Joydeep Som, DDG, NIC HOD Transport Project, under which guidance this all transport application are being developed. We have our Sri J.K. Verma ji, who is SIO Rajasthan State Unit. We have Sri Sripal Yadav ji. He has given a very depth demo of what he has done in transport sector in Rajasthan State. I have my colleague P.K. Nayak ji, who is from NIC Odisha unit, and he is developing a few applications related to the e-transport project. We have Srimati Nidhi Singh, Joint Transport Commissioner, Government of Rajasthan. We have Sri Rohitas Meena ji, Joint Director IT, and Sri Vineet Kumar, DGM, SBI. So, I would like initially from Kanhaiya Lal sir कि आप राजस्थान परिवहन द्वारा सामान्य जन की सुरक्षा एवं उनमें विश्वास जगाने की भावना के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताएं कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है. थैंक यू अवनेश जी. आज इस पैनल डिस्कशन से पहले श्रीपाल जी ने डिटेल में राजस्थान में जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो चाहे डिजिटाइजेशन की दृष्टि से हों, चाहे रोड सेफ्टी की दृष्टि से हों, विस्तार से आपके सामने बताया था. इस पैनल डिस्कशन में जो मुख्य फोकस रखा गया है, उसका एक वर्ड या दो वर्ड बड़े अट्रैक्ट करते हैं, डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस. जैसा अवनेश जी भी कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सभी को, हमारे परिवार के हर मेंबर को किसी न किसी रूप से
हमेशा जुड़े रहना पड़ता है। यदि हम रोड पर पैदल भी चलते हैं तो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारे बीच में आता है, यदि हम वाहन का यूज करते हैं तो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर बीच में आता है। रोड सेफ्टी इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है राजस्थान में। रोड सेफ्टी की दृष्टि से और ट्रांसपोर्ट को यूजर फ्रेंडली बनाने की दृष्टि से काफी काम हुआ है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने भी किया है। दूसरे स्टेट्स में अच्छे जो कार्य हुए हैं वो भी हमने अडॉप्ट किए हैं, और एनआईसी की टीम का भी मैं बिल्कुल इस मंच से कह सकता हूं कि उनका बड़ा योगदान इसमें रहा है। यदि हम कस्टमर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस की बात करें, अभी हमारे फाडा के प्रतिनिधि थे जो नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पता है कि हमने राजस्थान में जो एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी शुरू की है वो वाकई में बड़ा करिश्मे से कम नहीं है। राजस्थान में जैसलमेर से कोई व्यक्ति आता है और वो हमारे सामने बैठे हैं, किन्हीं डीलर साहब से अपनी गाड़ी लेना चाहता है, पर उसके मन में ये इच्छा रहती है कि मेरा नंबर है वो जैसलमेर का ही होना चाहिए, और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से टीआरसी लेके जाऊँ और जैसलमेर डीटीओ ऑफिस में जाऊँ, वहाँ पर मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना पड़ेगा और उसमें कितनी एनर्जी या कितना समय उसका खराब होगा। तो हमने इंट्रा स्टेट टीआरसी बिल्कुल अबोलिश की और जयपुर के डीलर को ही ये ऑथराइज किया कि वो जैसलमेर का नंबर जनरेट कर सकता है। उसका जो परचेजर है, जो कस्टमर है, वो जैसलमेर का रहने वाला है, जयपुर से अपनी गाड़ी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के शोरूम से गाड़ी खरीदेगा और यहीं से उसको जैसलमेर का नंबर मिलेगा और वो गाड़ी अपना नंबर जनरेट करवा के वो गाड़ी आराम से जैसलमेर ले जाएगा। किसी प्रकार की टीआरसी की आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। ये वास्तव में कस्टमर के लिए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं राजस्थान में देना चाहूंगा कि अभी श्रीपाल जी ने बड़ा प्रयास करके हमने रोड सेफ्टी से विशेष रूप से कुछ इंटरसेप्टर्स प्रोवाइड करवाए थे, और उन इंटरसेप्टर्स का मेजर हमारा कंपोनेंट ये था कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हैं वो रोड सेफ्टी के एंगल से होते हैं, ओवर स्पीडिंग की दृष्टि से होते हैं। ओवर स्पीडिंग का हमने डिजिटाइज सिस्टम किया और ऑटोमेटिक चालान जनरेशन का एक ये सिस्टम उससे डेवलप हुआ। ओवर स्पीड जैसे ही डिटेक्ट होती है ऑटोमेटिक एक चालान जनरेट होता है और एक मैसेज उस जो भी वायलेटर था उसके फोन पर जाता है, और एक लिंक भी उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उस लिंक के माध्यम से यदि वो एक बेहतर नागरिक है और अपनी जिम्मेवारी को समझता है और उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो जो चालान की राशि है वो उससे जमा करवा सकता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर थे, उनकी एक रिक्वेस्ट मेरे पास में आई कि साहब बिल्कुल सही है, मेरे ड्राइवर ने ये गलती की और ये चालान बना, ये वास्तव में बनना चाहिए, लेकिन मुझे जो लिंक है उसमें आपने शायद, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, यादव जी क्लियर करेंगे कि 3 दिन का समय अभी तत्काल मैं कैसे जमा करवा सकता हूँ। मैंने यादव जी से चर्चा की और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम इस लिंक को हम तत्काल राशि जमा कराने की दृष्टि से भी हम इसको एनेबल कर देंगे, और वो हमने किया। तो ये एक बड़ा मतलब देखने में यूं तो लगता है कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया, इससे किसी को नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आईटी का एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस भी है कि आपका चालान ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, कहीं किसी जगह आपको कोई पुलिस का इंटरवेंशन या उसकी आवश्यकता नहीं थी, और न कोई आपका टाइम उसमें खराब हुआ। आपने ऑफेंस किया और उसकी अकाउंटेबिलिटी के रूप में आपको एक लिंक मिला और आपने वो चालान का पैसा जमा करवाया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से हम आईटी इनोवेशन के जरिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कस्टमर फ्रेंडली चीजें ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। ये एक वक्त की मांग भी है और हम इसमें सक्षम भी हैं, क्योंकि हमारा जो आईटी का जो स्टाफ है वो इस दृष्टि से अच्छा काम कर सकता है। रोड सेफ्टी के एंगल से, क्योंकि इसका एक दूसरा कंपोनेंट आज के इस डिस्कशन का रोड सेफ्टी है, हमारे जितने भी आईटी इनोवेशंस हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं उनका बेसिक पर्पज हमारा आज के रेफरेंस में सड़क सुरक्षा या जो व्हीकल्स रोड पर चल रहे हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा हमारा पहला कंपोनेंट होना चाहिए। इस दृष्टि से भी राजस्थान ने एक पायनियर स्टेट के रूप में काम किया। रोड सेफ्टी पर पिछले करीबन 1 दशक से बड़ा फोकस किया जा रहा है, और इंडिया के रेफरेंस भी यदि हम सोचें तो हमारी कंडीशन वर्ल्ड के लेवल पर बड़ी खराब है, और हम रोड सेफ्टी में जो हमारी डेथ्स हैं उनमें बहुत आगे हैं। तो हमें इसमें ज्यादा अच्छा कार्य करने की आवश्यकता भी है। राजस्थान ने एक पायनियर स्टेट के रूप में काम करते हुए सबसे पहले हमारे सीएम साहब की बड़ी अच्छी
इसके प्रति सोच है, उन्होंने इस डिपार्टमेंट का नाम ही ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट कर दिया। तो रोड सेफ्टी ऑटोमेटिकली थ्रस्ट पर आ गया, इस नामकरण से ही आ गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे इनिशिएटिव्स इस तरह के लिए गए, क्योंकि अगर हम एक्सीडेंट्स के डेटा देखें, एक्सीडेंट डेटा पर यदि हम गौर करें तो एक्सीडेंट डेटा कोई हमारे के कंपेरेबल डेटा अन्य कंट्रीज में भी होंगे, लेकिन वहां डेथ्स की संख्या देखें तो डेथ्स बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रॉमा केयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो 2 स्कीम हमारे स्टेट में विशेष रूप से लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना। इसके तहत जो गुड सैमरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 5,000 रुपए और प्रोत्साहन राशि का एक इनिशिएटिव शुरू किया। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मोर्थ ने भी ये स्कीम जारी की, उसकी राशि को इस साल बढ़ाते हुए 10,000 रुपए किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना, उसके तहत जो भी विक्टिम है उसको हम 72 घंटे निःशुल्क उसका ट्रीटमेंट जो हमारे प्राइवेट चिरंजीवी हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं। ये एक बड़ा इनिशिएटिव था ताकि हम ट्रॉमा केयर पर फोकस कर सकें। इसके अलावा छोटे छोटे इनिशिएटिव हमने इस दृष्टि से लिए। सड़क सुरक्षा जिला स्तर पर हमने एक सड़क सुरक्षा पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें जो भी हमारे जो एक्सीडेंट्स के जो डेटा हैं उसमें जो कमी लाते हैं उन जिलों को हमने प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की। हर जिले में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता की दृष्टि से ट्रैफिक पार्क का एक कंसेप्ट भी हम लेकर आए, जो कि हर जिले में एक ट्रैफिक पार्क हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर सीएम साहब, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सीएस मैम, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग्स जो रेगुलर बेसिस पर होती रही है, उसके अलावा हमने स्पेशल फोकस के लिए स्टेट लेवल पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो रोड सेफ्टी के एंगल से काम करती है। और इस बजट घोषणा से हमने जिला स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का भी एक गठन किया गया है। इससे भी हम फ्यूचर में रोड सेफ्टी के एंगल से अच्छा कार्य कर पाएंगे। एक हमारा स्पेशल इनिशिएटिव हमने लिया कि स्टेट लेवल पर रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक स्थापना की हमने, जो कि हम फ्यूचर में एक अच्छा रोड सेफ्टी के एंगल से सभी सेक्टर्स को शामिल करते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग का और ट्रेनिंग का कार्य करेगा। एक दूसरा इनिशिएटिव जो अभी यादव साहब अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि राजस्थान में पहली बार ये हमने एक विचार ये लिया सरकार ने कि हमें रोड सेफ्टी एक्ट अलग से लेके आएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में रोड सेफ्टी कंपोनेंट को लिया गया है, लेकिन फिर भी रोड सेफ्टी को अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, एक्सीडेंट को कम कैसे किया जाए, एक्सीडेंट होने के बाद में जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से हम उनको ट्रॉमा केयर किस तरह से प्रोवाइड करवा सकें, उसके बाद में जो घायल हैं, जो किसी तरह से दिव्यांग बन जाते हैं या फिर जिनके यहाँ डेथ्स हो जाती हैं, उनकी फैमिलीज की बात की जो पोस्ट जो उनका जो दिक्कतें उनको आती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट की आवश्यकता सरकार ने महसूस की। तो रोड सेफ्टी एक्ट का हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि इसको भी हम धरातल पर लाएंगे। तो ये भी एक अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो एक नया इनोवेटिव आइडिया होगा और हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से फ्यूचर को देखते हुए रोड सेफ्टी को हम ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, मेरे अन्य वक्ता भी बताएंगे, लेकिन हम इस दृष्टि से सोचते हैं कि ज्यादा बेहतर कार्य कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया सर, इतना डिटेल में बताने के लिए। एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और एक विशेष चीज़ बताने के लिए कि नॉर्मली कभी एक्सीडेंट होने पे जो पासरबाई हैं या जो इन्वॉल्व हुए हैं वो नॉर्मली एक्सीडेंट विक्टिम्स को सपोर्ट देने के लिए कतराते हैं। वो पास से निकल जाएंगे लेकिन सपोर्ट नहीं देंगे। अब मोर्थ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको शायद 10,000 रुपये उसे पुरस्कार राशि मिलेगी और उसको हरास भी नहीं किया जाएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में ही आ गया है। साथ में एक और बढ़िया इनिशिएटिव है कि कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं एक्सीडेंट के बाद, जब उनको विक्टिम्स को मेजॉरिटी चांसेस 99% चांसेस होते हैं कि बच सकता है, उस टाइम गवर्नमेंट ने ही फ्री कर दिया है। आप 72 आवर्स के लिए कह रहे हैं तो उसको कोई खर्चा नहीं करना, गवर्नमेंट खुद उसका पूरा खर्चा लेगी तब तक उसके विक्टिम्स के रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जॉयदीप सर
although I know you have a one presentation on e-transport, which is transport to e-transport, but can you tell complete ecosystem of e-transport what NIC has done in these years? Pradeep sir. Yeah, good afternoon, everybody. In the last few years, there has been a lot of change in the transport sector. The technology intervention has been immense. And as you can see, there has been a transformative effect in every RTO for every citizen's life, which has been affected in a big way because of these technological interventions and in every state. And Rajasthan is one of the pioneers in this area, where there has been a lot of changes. So the automation is one thing, citizen facilitation is another thing. The focus is now on citizen. So to how to facilitate, as the SS earlier told, that it's not just regulatory effort, it's also to facilitate the citizen. That is the prime thing, and that is the focus area. Towards that, there's been a lot of work that has been done because of technology, because of the other business-related business process reengineering, which has been done in terms of rules and regulation changes. Now you see that a lot of services have been made faceless, for instance. Citizen need not go to the RTOs. So everything is now possible in the comfort of their home itself. They can apply online, they can pay the fees online, they can upload documents online, and then at the end of this, they can get the services also without visiting the RTO. So this is something that is a tremendous change, and it is now going to extend in a big way. It's now being extended to mobiles. That's a new application, and mobile app has been launched, which is Next Gen M-Parivahan, where you will be getting 75 services, 75 transport-related services have been incorporated in that. So any citizen can just imagine almost everything will be available on the mobile app itself. You can apply and you can do. So now, because the younger generation today is heavily mobile dependent, they don't even go to the web portal also. Their comfort area is mobile. So all these services will be now available in mobile, and it has already been implemented in a number of states. I think in Rajasthan also it is going to be implemented very soon. But these are the things how the citizen will be benefited tremendously. And for instance, a learner license test. Now we will need not go for that also to the RTOs. You can do it. There is a AI-based face recognition system using which the authentication is being done. Aadhaar has been incorporated into the system. Aadhaar authentication and eKYC both together are giving a trust factor to the whole system. So without going to the RTO is now quite sure that the person is not impersonating because of the various things which have been incorporated together. And so the system is transparent, system is convenient, and system is effective. So this way the whole system is changing. Take for instance the chalaning system. Just now Commissioner told that chalaning system is like if you are challaned now, people are more accountable. So people have to pay now. If even a camera is issuing a challan, there is a trust factor. There is accountability. Accountability on the department. That department is providing you evidence that this is the location based on the geolocation. This is the photograph of the violation, the place of violation where it has occurred. This is the time. This is the speed at which you were driving the vehicle at that point of time. So the entire evidence is there. And so people cannot say that, no, I was not there at that point of time. So, and now people when pay online, they are also sure that the money is going to the government coffer. So there is a trust, there is accountability, both are being built into the system. There's actually both sides of the same coin actually. So because of that, transparency is coming to the system. There is a trust factor, there is a facility, and as end of the whole thing, the end of doing business for the transporters and other stakeholders, the ease of doing business and ease of getting services for the common citizen. These are getting enhanced in a big way. So I think these are the things which we are looking forward to, and we have achieved a lot, but there is a lot more to be achieved. Thank you, Jyoti sir. Thank you very much. Giving so insightful in e-transport applications. So what sir focus was that we are now targeting how easily we can provide e-transport services to our citizens. Initially, those services was available through portals.
that you have to use a browser and then submit your request to avail any kind of services. Many cases where that person is not much IT savvy or may not be knowing about IT systems, may require a mediator to submit his application, his or her application. Moreover, that the documentation required to be submitted for availing any kind of services need to be scanned from somewhere else, then has to be copied, and then it has to be resized for submitting the application, because there is a limitation of uploading document, the size matter. So, sir has said that we have come up with the new application NextGen M1, which is mobile app, and we are targeting that most of the citizen-centric services are available on that mobile. And nowadays, mobile is not a luxury; it is need of everybody, and everybody have in their hand that mobile. So the services can be availed from there. So now I would like to request our next panelist, Sri J.K. Verma ji. He is SIO Rajasthan State Unit and had complete IT implementation in Rajasthan, and he has done a wonderful job. So I would request him if he can brief about what e-governance solution has been implemented in Rajasthan state along with transport sector. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank State Government Department as well as my head of the transport from Government of India and IC. And I'd like to say that I'm proud of the part of the transportation team being held here in Rajasthan. As there are so many panelists who will be talking about the transportation and all, but I'll give you an example. I had an article yesterday. There is a M-Parivan app for the helmetless people. Those who are driving the vehicle using without helmet. So there is an application so that you can download it. It is in a public domain. You can download it. You can put it on the server, and our system will be analyzing what is happening in that particular vehicle, and the challan will be generated, and this will be going to the particular person. So there are so many ICT development is going on all around the country as well as all around the state. I'll give you some of the example what we are doing in Rajasthan. See, whenever we are going for any ICT application, we are requiring the infrastructure as far as the state is concerned. So we have a lot of very good infrastructure with us in Rajasthan. I'll give you an example of the data center, state data center, which is having 600 racks. 600 racks are very big racks. We are having a disaster recovery center at Jodhpur. We are having 2 mini clouds at Rajasthan in Jaipur itself. So these are the infrastructure, and I would, on behalf of the government of Rajasthan, I will say that anybody who wanted to share our infrastructure, they are welcome. As far as applications are concerned in Rajasthan, I should say that कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कि आईसीटी का फुल्ली इन्वॉल्वमेंट नहीं. Once again, I tell you that no sector is remained in Rajasthan because of as today Akhil sir has told, on 360 degree, we are doing each and every sector right from A to the Z. It doesn't mean that we are filling the form on paper and then giving it to the single window system, and then the result is coming out. It is totally a paperless. I'll give you the example. First, I would like to tell you that there is a financial management system in line in the Rajasthan. You might be knowing, some of the people you might be knowing about the IFMS, Integrated Financial Management System. Earlier it was 2.0, now we are developing 3.0, the new technology. Beauty of this system is that we have integrated most of the module or all the modules of Rajasthan, so that even a single penny is coming to the government of Rajasthan, or single penny is going out of the Rajasthan, in any part of the department. So this is going through the IFMS system. But what I mean to say that more than जितने भी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे IFMS से इंटीग्रेटेड है.
मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी पर्सन्स को हो रहा है, जिस भी फीमेल्स को हो रहा है, जो एक कैटेगरी हम लोगों ने बना रखा है, उसका सारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो ई वॉलेट से लेकर जब तक भी फाइनेंशियल डिलीवरी होगा वो सारा की सारा IFMS के थ्रू होगा। Another beautiful example of ICT in Rajasthan is that there is a Pehchan portal lying with us. In Pehchan, I will tell you that whenever there is a birth of a child, we have a birth registration system. ये बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल है। आपको थोड़ा देखिए, जब भी बच्चा यहाँ पर मतलब पैदा होगा तो वी हैव ए बर्थ सर्टिफिकेशन फॉर दैट चाइल्ड। जब बच्चे के साथ में उसका टीकाकरण होगा, वो सारे के सारा सिस्टम हमारे पास में हेल्थ में है। The health services we are providing to the child as well as to mother using the ICT application. जब बच्चा 3 साल का होने के बाद में स्कूल जाएगा तो we have a Shala Darpan, we have a portal for Shala Darpan which is executing that child for the education purpose. And this all are connected with the Jan Aadhaar. You have heard in the morning or some of the panelists or the speakers have told about the Jan Aadhaar. हरियाणा के अंदर पब्लिक हेल्थ नंबर है। जब बच्चा उसके बाद में स्कूल चला जाएगा, स्कूल जाने के बाद में 12वीं क्लास में वो बच्चा उस शाला दर्पण के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। एंड शाला दर्पण वी हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन, everything related, either it is a teacher's detail, either it's a bachcha's detail, everything is there in the Shala Darpan. Then the bacha goes to the college. We have a college education system. We are having the college portal, so that we are tracking the person, that we are tracking the children, that where it is going to the college or not. If it is going to the college or it is going to the higher colleges, for higher education, like engineering college or any other college in Rajasthan, we are tracking that student also. So in that way, another way is that when after completing the college, if he is appearing for any example, we have a RPSC system. So that is again connected with the Jan Aadhaar. If he got services in Rajasthan, we are having our another system, which is our pension system. Pension system is that comes with the Rajasthan government services, and we are dealing all the things. Whenever he is retiring, it comes in the pension system. So the whole cycle is connected with that person. So these जो cycle हम लोग आपस में connect कर रहे हैं, the main point is the Jan Aadhaar. ये है जैसे कि सुबह बताया गया था कि जन आधार जो है वो हमारा एक फैमिली का आधार है, फैमिली का है जिसमें कि पूरे फैमिली मेंबर्स हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। ई पंजीयन जो हमारा है, ई पंजीयन के अंदर सारा की सारा पब्लिक, सारा की सारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो सभी ई पंजीयन के द्वारा हमारा लैंड का है। एक और जो एग्जांपल है वो है ई नगर सूट। ई नगर सूट इज फॉर द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें कि हम right from the beginning of a land to the possession of the hand to the making of a house, we are doing this application. So there are a lot of application we are doing in Rajasthan, and I would like to thank the state of Rajasthan as well as my team in NIC and the state team in Rajasthan for doing all this thing and making Rajasthan pioneer in the country. Thank you. Thank you, Varmaji. Thank you very much for being so insightful about IT implementation. May I request now Sripal Adabji, although you have given a brief description of your all complete work, can you briefly describe how you are ensuring all e-transport application to be implemented in Rajasthan state? It's a big e-transport umbrella, and how fast you are able to implement this here in Rajasthan state? As I mentioned in my presentation that e-transport services are being governed by CMVR as well as state rules. जैसे हम लोग कोई CMVR में कोई GSR जनरेट होता है, GSR इश्यू होता है, तो एज पर स्टेट स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन हम लोगों को टाइम बाउंड मैनर में स्टेट को सर्विसेज रोल आउट करनी पड़ती है। और इसके लिए चूंकि ऑल थिंग्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, सो जैसे ही जीएसआर जनरेट हुआ, मोड से अप्रूवल आया एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसेंट आया, सो वी गेट इट कस्टमाइज इन टाउन बाउंड मैनर, एंड बिकॉज दीज आर कनेक्टेड विद अदर पोर्टल्स लाइक eGrass, so this is the big challenge. We have to get change in eGrass also for our purpose code as well as the
हेड ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे ही कोई एक्टिवेशन होता है, किसी भी जीएसआर का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो ट्रेनिंग सेशन हम लोग टाइम बाउंड मैनर में हमारे प्रोग्रामर्स और आईए जो हर जिले में डीटीओ ऑफिस में तैनात है, उनका एक ट्रेनिंग सेशन हम लोग रखते हैं। और टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनीवेयर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट, वहां सबसे पहले डीलर्स को ऑथराइज किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच आर नॉट fully body built. Means body built vehicles are to be number will be generated by dealer only, and without body built उनका अप्रूवल हमारे यहाँ डीटीओ ऑफिस में जाता है। तो डीलर्स में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डीलर्स वर ट्रेंड। सेम वे एनीवेयर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने के लिए डीलर्स को, बिकॉज 3500 डीलर्स है राजस्थान में, एंड सेम डे वी आर सपोज टू रोल आउट दैट मॉड्यूल। तो सर की अध्यक्षता में हम लोगों ने ट्रेनिंग रखी एंड ऑल डीलर्स वर ट्रेन्ड इन सेम डे एंड द पोर्टल वाज लॉन्च इन राजस्थान एट इट्स फर्स्ट टाइम। एडिशनली, चूंकि इसके अलावा स्क्रैपिंग सेंटर्स जो जारी हुए राजस्थान, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है भारत सरकार की, जो भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स उनको फेज आउट करने की और नए व्हीकल्स को उस सीओडी जनरेटेड सीओडी के थ्रू न्यू व्हीकल्स प्रोक्योर करने की, ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े और जो एप्लीकेंट हैं या जो व्हीकल ओनर हैं उनको रोड टैक्स में 25% रोड टैक्स में छूट हम दे रहे हैं नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में 15% की छूट दे रहे हैं। राजस्थान में चूंकि ये फर्स्ट टाइम सीओडी के थ्रू एप्लीकेंट को इसका बेनिफिट लेने के लिए इसको हमने आरबीसी पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम लागू किया है, तो इसको रोल आउट करने के लिए स्क्रैपर्स as well as DG e-way users as well as those who are trading that particular COD to other applicant, means COD जनरेट हुआ, मैंने COD का 25,000 रुपये मुझे मेरी अगर पुरानी गाड़ी का मिला है मुझे, और पुरानी गाड़ी की कीमत मिलने के बाद में स्क्रैपर मुझे एक COD जनरेट करके दे रहा है, उस COD को मैं यूज लूंगा नई गाड़ी में तो मुझे 25% की उसकी रोड टैक्स की छूट मिलेगी। अगर मैं उस अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं हूं तो आई कैन ट्रेड दैट COD आल्सो यूजिंग आवर पोर्टल, एंड दैट इज द ऑटोमेटिक बिडिंग प्रोसेस। नया जो डीलर है, नया जो जिसको अपनी नई गाड़ी प्रोक्योर करनी है, ही कैन ट्रेड दैट COD एंड ही कैन कंज्यूम दैट COD टू आवर यूजिंग आवर पोर्टल एंड गेटिंग द सब्सिडी ऑल्सो। सो जो भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हेल्प डेस्क एक सेंटर बनाया हुआ है हमारे NIC हेल्प डेस्क सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उसमें, और चूंकि स्टेट का पूरा IT एक सेल बना हुआ है DOIT की तरफ से, जिसको रोहतास जी हेड करते हैं हमारे यहाँ से सिस्टम एनालिस्ट। तो वी एज ए टीम इम्प्लीमेंटिंग ऑल GSR इन टाउन बाउंड मैनर सो दैट वी कैन सर्व द सिटीजन टाइम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। Now I will request next panelist, Mr. PK Nayak ji. He is also having one more presentation on e-detection after this panel session. Can you give little brief what new application we are coming up, which is going to ensure road safety? Good afternoon. Actually, today's topic is digitization for trust, accountability, and a delightful user satisfaction. Basically, digitization generally done for G2C simplification, giving citizen a proper facilitation to for ease of doing business. It as well as generate revenue and maintain road safety basically in the transport sector, I'm saying. So, as assigned by me, to say something about road safety, how the digitization impacting on road safety, I would like to mention some of the initiative we have done
besides the central e-transport ecosystem. In the field of driving license, in the field of registration, and in the field of enforcement, a lot of things have been done to maintain the road safety. Earlier, what was happening? People were driving on the road without a driving license. So what we have made, made it faceless. A person can apply learning license at his own convenience at his home. So in Odisha, what we have developed local applications that has been now rolled out in around 11 states. One is AI-based proctoring. One is other one is the smart lock application. So whenever a person, to maintain the integrity of the test, basically a applicant who is appearing the ALA at home, he will go through the proctoring, online AI-based proctoring system, which can detect his presence, whether some other person is there, his absence, all these things. And there is one more application we are implemented, that is the smart lock application. That means the particular system will be locked for certain point of view, so that no cheating can be done and the integrity can be maintained. So these two applications we have developed, and it is integrated in Saarthi also. In 11 states is working. For vehicle registration, I may say earlier what is happening, unregistered vehicles were moving on the road. That was a threat to road safety. So what government of Odisha decided, a vehicle has to register and fix with a number plate, then only can leave from the dealer point. So that has been ensured. We done this one entirely, and the registration certificate and driving license we are making available in the online portal, so that the vehicle owner or the driver can download the digital form of RC and can take his vehicle away from the dealer point. For the enforcement point of view, I must say we developed one system, e-Nirikshan. That is a system, basically IoT-based application, where there is a INC center, inspection and certification center. Some machines are there, and vehicles are coming in different bays or lays, right? Vehicle classes according to the vehicle classes. Then the system records or it notes different type of readings as per our norms, as per CMVR, and it pushes the result to the NBI to take the decision. This is the for fitness. And as in central Parivahan portal, N-Vahan is implemented in everywhere. Along with that, we have given two things also for the motor vehicle inspectors. Two few small databases we have created for speed governor and fare meter. So when a motor vehicle inspector inspecting a speed governor or a fare meter, a database is there which shows him that this speed governor is fixed with this vehicle, or this fare meter is fixed with this three-wheeler. So that has been ensured that officer that really the actual speed governor or fare meter is fixed with that particular vehicle. So along with that, for enforcement, we have developed one application, e-detection application, which I demonstrate before you. Here what happened, as you have seen, many non-law compliant vehicles are moving on the road, which are a threat to road safety as well as losing our revenue. So we have integrated the toll gates as well as some ANPR locations, and we are generating e-challans automatically to that particular vehicle owner. So this is one more step for enforcement, increasing enforcement. So also we have implemented ITMS and IEMS, Intelligent Enforcement Management System, in many of the districts of the state. And we have also implemented one project named as DISA. That is a ITMS, basically ITMS, but it is implemented in the state of national highway of around 200 kilometers, where we put gantries and cameras through which we are detecting the violating vehicles and we are issuing challan. Similar way, recently, yesterday we have implemented Citizen Sentinel, where we include the public or the citizen
to involve in the road safety activities, like we can get some violations videos and photographs from them through a commonly used portal which everybody using, all transport sector, all vehicle owners are using, NextGen mParivan app. So what they are doing, they are uploading, public can upload, that means here accessibility given to public. He can help us to make our road safer by just uploading the video and by uploading a photographs of the violating vehicles. So basically here immediately or recently we have for the first time we have added no helmet only. Then after getting those photographs, the ITMS in the ITMS system, our officer will verify and that will be processed to e-challan. So this way we are enhancing the e-challan or the enforcement activities in our state. थैंक यू नायक जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. सो नायक जी ने काफ़ी डिटेल में बताया और एक नई एप्लीकेशन जो सिटीजन सेंटिनल, सो पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैन नॉट हैव मैनी हैंड्स कि हर जगह जाके ट्रैफिक वायलेशंस को कैप्चर करें और चालान जनरेट करें और उसको कंट्रोल करें। सो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए सभी सिटीजन्स के हैंड दे दिए गए हैं। एक पोर्टल ऐसा बनाया गया है नेक्स्टजेन mParivan में, वहाँ पे कोई भी सिटीजन, आज की डेट में जब हम रोड पे चलते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई रूडली गाड़ी चला रहा है या गलत तरीके से चला रहा है तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, गालियाँ देते हैं उसको और निकल जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट कुछ। सो अब आपके हाथ में है वो चीज़, आप उस वायलेशन को कैप्चर करें और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज दें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा और चालान जनरेट करेगा। तो उस तरीके से ट्रैफिक में रूल्स फॉलो करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ेगी डेफिनेटली। थैंक यू नायक जी, थैंक यू। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट श्रीमती निधि सिंह जी, सी जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड इन चार्ज ऑफ रोड सेफ्टी आल्सो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि अभी तक राजस्थान स्टेट ने रोड सेफ्टी में क्या किया है और आप क्या और चाहते हैं जिसमें NIC आपको हेल्प कर सके या कोई और डिपार्टमेंट हेल्प कर सके, सो दैट हम सिटीजन की रोड सेफ्टी में कुछ बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। हम सब जानते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो साइड इफ़ेक्ट के रूप में एक रोड एक्सीडेंट्स जो है ये एक साइड इफ़ेक्ट थे जिसने बढ़ते बढ़ते एक बहुत विकराल रूप ले लिया और बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज की डेट में। इसका जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट है वो है कि वर्ल्ड ओवर 3% लॉस ऑफ GDP। सो वी आर लूजिंग ऑलमोस्ट 3% ऑफ आवर GDP जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है। तो उसमें व्हीकल डैमेज होता है, ह्यूमन लाइफ कॉस्ट करती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, कई बार रोड फर्नीचर भी डैमेज होता है। तो बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये हम बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया इस कारण से। ऑफ कोर्स जो इसका सोशल और जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी ह्यूमन लाइफ्स जो हम लूज करते हैं या लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो उसको हम कैलकुलेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते इस लॉस को। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव्स लिए। इसमें हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन ले हो गया, हमारी रोड सेफ्टी पॉलिसी बन गई। जैसे सर ने बताया, पहले हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत सारी स्टेट लेवल कमिटीज़ है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने जब डायरेक्शंस दिए तो राजस्थान वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसमें कि स्टेट रोड सेफ्टी सेल जो है लीड एजेंसी, दैट वाज इंटर डिपार्टमेंटल रोड सेफ्टी सेल, वो बन गया। क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के करने से नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बीइंग द नोडल डिपार्टमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, बट all the departments are have an equally important role in this। तो इस कारण से सभी डिपार्टमेंट्स को लेते हुए, ऑफिसर्स को लेते हुए डेडिकेटेड रोड सेफ्टी सेल बना। इट वाज वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स। इसके अलावा रोड सेफ्टी फंड
जितने भी हमारे ट्रैफिक चालान्स होते हैं उसका 25% एवरी ईयर जो है वो रोड सेफ्टी फंड में आता है, जिससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक सेक्शन 135 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें एक बहुत डिटेल्ड स्कीम बनाई जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, एक डेवलपमेंट ऑफ वे साइड एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एड पोस्ट्स, तो ये ट्रैफिक एड पोस्ट सॉरी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी इम्पोर्टेंट थी कि हम वे साइड एमिनिटीज भी डेवलप करें। अब हमारा पूरा फाउंडेशन ले हो गया, हेलमेट्स कंपलसरी हो गए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सेटअप हो गया, फंड बन गया, सब कुछ हो गया। अब आने वाला ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का है ऑफ कोर्स, और हमें बहुत अब हम टेक ऑफ करने की स्टेज में स्टेट गवर्नमेंट आ गई। अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अभी टेक्नोलॉजिकली, जैसे कि आईरेड ऐप आ गया। आईरेड ऐप जैसा श्रीपाल सर ने बताया, इस इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस ऐप में राजस्थान इसमें भी पायनियर था। जो पहले 6 स्टेट्स थे इंडिया में जो लिए गए थे, उसमें राजस्थान एज ए पायलट स्टेट लिया गया था। और जब मार्च 2021 में आईरेड ऐप आया तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ, सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड हुए, और अब उसके एप्लीकेशन का समय आया। तो उसका जो हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया बहुत यूज़फुल रहा, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल प्लानिंग में बहुत यूज़फुल हो रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो था, पहले हमें रोड एक्सीडेंट्स का स्पेसिफिक जो लोकेशन है वो नहीं मिलती थी, बहुत सब्जेक्टिव सा था कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। तो आईरेड ऐप आने के बाद हमें एग्जैक्ट लैटलॉन्ग मिलने लग गया, तो उसमें हमें ऑडिट करने में बहुत हेल्प मिली। तो हमने स्टेट लेवल से बहुत सारी ऑडिट्स कराई, तो उन ऑडिट्स में हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चला। तो एग्जैक्ट लोकेशन से हम ये पता चला कि जो हाईवेज पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ज़्यादातर जंक्शंस पे हो रहे हैं। तो इस ऐप को यूटिलाइज करते हुए जो डिटेल्ड ऑडिट्स हुई उससे हम रेक्टिफिकेशन मेजर्स करवा पाए। आगे जाके ब्लैक स्पॉट मैनेजमेंट में, ब्लैक स्पॉट के रेक्टिफिकेशन में सिस्टम डेवलप करने में ये ऐप हमारे काम आएगा। फिर एनफोर्समेंट का, जैसे पहले बताया कि एनफोर्समेंट के लिए भी ग्रिड सिस्टम से पुलिस ने ये डिसाइड किया कि भाई ये वाले जो थाने हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोन है, तो हम उसमें बेटर एनफोर्समेंट कर पाए, बेटर रोड सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो पाए। तो इस तरीके से आईरेड ऐप का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा वॉर रूम, जैसा हमारे कमिश्नर सर ने भी पहले बताया कि वॉर रूम का जो मेन पर्पस था वो था कि हम कैसे हेल्प पहुंचाएं रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को, तो इमीडिएट पुलिस एंड मेडिकल एड किस तरीके से पहुंचाई जाए। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव था जो कि हेल्पफुल रहा। फिर हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज देखें तो एनफोर्समेंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ITMS आ रहा है, या इंटरसेप्टर्स हैं, डैश कैमराज हैं, बॉडी वॉर्न कैमराज हैं, इनको हम यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एनफोर्समेंट, क्योंकि अब मैनुअल इंटरवेंशन धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टाफ है, तो मैनुअल इंटरवेंशन ख़त्म करके हमें इस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा कि हम ई-चालान्स जनरेट करें। इसी तरह से अगर हम मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में देखें तो ट्रॉमा सेंटर्स का डेवलपमेंट रोड सेफ्टी फंड के थ्रू तो हुआ ही, इसके अलावा बहुत स्किल लैब्स बने। अभी 3 जगह स्किल लैब बन गए, एक तो SMS हॉस्पिटल जयपुर में और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो गया, और सभी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इसको करेंगे। तो इसमें हाई फिडिलिटी मैनिक्वेंस के हेल्प से डॉक्टर्स एंड नर्सेज की ट्रेनिंग, रेगुलर BLS ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, ये सब पॉसिबल हो पाया। एजुकेशन के सेक्टर में देखें तो इसको हम जैसे वेब पोर्टल हमारा रोड सेफ्टी का राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनके साथ मिलके जो स्टेट रोड सेफ्टी सेल है, एक ये वेब पोर्टल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसको अभी वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। फिर एक मॉड्यूल बनाया था RKCL ने स्टेट रोड सेफ्टी सेल के साथ मिलके, जिसमें उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स को एक रोड सेफ्टी का, जब वो कंप्यूटर के कोर्सेज में लॉग इन करते हैं तो उसमें पहले वो रोड सेफ्टी की क्विज लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, हमने सबने बात भी की इसके बारे में। फ्यूचर के जो हमारी प्लानिंग है कि हम नेक्स्ट 10 ईयर्स का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं स्टेट के लिए। तो ये राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड बैंक का PWD के साथ। तो इसमें एक जो एक्शन प्लान बन रहा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम स्टेट में ITMS को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, कैसे हम बाकी सारी चीज़ें इसके थ्रू कर पाएंगे। बहुत सारे MIS भी बनाने की तैयारी है।
जैसे रोड सेफ्टी फंड का मैनेजमेंट सिस्टम है, ब्लैक स्पॉट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, इंटीग्रेशन ऑफ एम्बुलेंसेस। तो इसमें 108 के साथ जो 1033 का जो नेशनल NHAI के जो एम्बुलेंसेस हैं उनका इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग फेज में है, और फिर नेक्स्ट फेज में प्राइवेट एम्बुलेंसेस को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऑफ कोर्स जैसा सर आपने बोला कि टेक्नोलॉजी में क्या हेल्प चाहिए, हमें बहुत सारी हेल्प चाहिए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके ही आगे बढ़ने का टाइम है। जैसे मैंने कहा फाउंडेशन तो ले हो गया, पर आगे टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी इन रोड एक्सीडेंट्स को रोकने में। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. NIC is always there to help you out adopting new technologies and new solutions. There is paucity of time, but still we have two more panelists. So Rohitas ji is the Joint Director IT. He is very IT savvy person. I know him very personally. So can you describe how the IT implementation is going to build trust among citizens? यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि लेवल ऑफ ट्रस्ट ये दर्शाता है कि हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है वो कितने सफल हुए हैं। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड्स वर्क। तो जैसा हम भगवान में विश्वास करते हैं उसी का एक यहाँ पे लोकतंत्र में जो रूप है वो सरकार है हमारी। तो राजस्थान में आईटी में 360 डिग्री प्रयास हुए विगत 2 दशकों में, और एक पाइनियर स्टेट के रूप में सामने आया है। तो विभिन्न प्रयास किए हैं जिसमें न केवल हम अलग अलग तरह की सेवाएं दे रहे हैं सिटीजन्स को, साथ ही उनको इंटीग्रेट भी किया जा रहा है आपस में, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स ऐसे लगें कि सभी जुड़े हुए हैं और सीमलेस आपको सर्विसेज मिलें। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पिछले 10 सालों में की गई है वो है कि हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारा स्टेट डेटा सेंटर, जैसा कि SIO साहब ने बताया कि 600 रैक्स लगे हुए हैं उसमें, क्योंकि आपका जितना बढ़िया स्टेट डेटा सेंटर होगा तो आप कोई भी नई एप्लीकेशन इजीली डेवलप करके इजीली होस्ट कर सकते हैं। वहाँ न केवल सरकारी सेवाओं, सरकारी एप्लीकेशंस को हम होस्ट कर सकते हैं, प्लस वो स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनी सबके लिए खोला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक विजन है जो कि सभी को लेके साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारे राजस्थान एक पाइनियर स्टेट रहा है सिंगल साइन ऑन का कंसेप्ट देने में, ताकि आपकी सरकार के सभी विभाग, सभी सेवाएं न केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को एक जगह उनको देख सकें, बल्कि सिटीजन भी उसका एक ही जगह फायदा ले सके। तो एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है जो कि सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। फिर सन 2014 से सरकार ने संपर्क पोर्टल लेके आए हैं, ताकि सेवाएं देना एक अलग कार्य है और दूसरा उनकी समस्याओं का समाधान। तो संपर्क 181 नंबर जो है हमारा एक आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि आप वहाँ अपनी समस्याएं डाल सकते हैं और उनका समाधान मिलेगा। आपको कई तरीके हैं, आप चाहो तो अपने SSO साइन इन करके आप खुद शिकायत डाल सकते हैं। आप 181 पे कॉल कीजिए, वो आपके लिए शिकायत दर्ज कर देंगे। और उसमें भी आपके बहुत सारे 4 लेवल स्तर बनाए रखे हैं, जिनसे कि अगर सबसे नीचे स्तर पे कार्य नहीं होता है तो कुछ समय बाद अपने आप ऑटो एस्केलेट हो जाएगा, ताकि एक समय आने के बाद जो ऊपर पहुंच जाती है समस्या तो आपका समाधान होगा ही एक लिमिटेड टाइम बाउंड मैनर में। पिछले 10 सालों में 1.33 करोड़ समस्याएं दर्ज की हैं, उसमें से 1.3 करोड़ समस्याओं डिस्पोजल हो गई, जो दिखाता है कि काफी इफेक्टिव रहा है सिस्टम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके अलावा सेवाएं देने के लिए आईटी एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन युवा वर्ग जरूर है कि आईटी इनेबल्ड होता है, आईटी सेवी होता है, लेकिन हमारे अधिकतर जनसंख्या है वो आईटी इनेबल नहीं है। तो सरकार ने ई मित्रा के माध्यम से 80,000 ई मित्रा हमारे राजस्थान में है। आपके घर के नजदीक एक नई ई मित्रा सेंटर मिल जाएगा, वहाँ 450 से ज्यादा सर्विसेज ई मित्रा के माध्यम से दी जा रही हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में प्रयास करके NIC के साथ मिलके हमने लगभग DL और RC बहुत सारी सेवाएं दे दी हैं और समय के साथ उनको और देने वाले हैं। इसके अलावा पिछले मैं ट्रांसपोर्ट की बात करना चाहूँगा कि
हमारे जो ट्रांसपोर्ट का वर्क कल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिश्नर साहब की मार्गदर्शन में हमने पिछले 1.5 साल में ई फाइल सिस्टम लागू किया है। सरकार में तो अक्टूबर नवंबर से चालू हुआ था 2022 में, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में मई 2022 में हमने इसको चालू कर दिया था एज ए लीडिंग डिपार्टमेंट। और इससे रियली विभाग का मतलब वर्क कल्चर काफी चेंज हुआ है। आज हमें खुद को पता है कि मेरी फाइल चली है, कहाँ पहुंची है, किसके पास पहुंची है। तो और आज जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लूंगा, पहले मुझे अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ पे डिपेंडेंट होना पड़ता था कि साहब ये पुट करना है, इसको करना है। आज मेरे लिए बहुत आसान है कि ईडाक आई, फाइल खुद क्रिएट की एंड जट मेरे को जितनी 2-4 लाइनें लिखनी है आगे फॉरवर्ड कर दी एंड तत्काल शाम तक उससे कमिश्नर साहब से डिसीजन होकर भी आ जाता है, जो पहले इतना आसान नहीं था क्योंकि हमें फाइल पहुंचाने के लिए पियोन को बुलाना पड़ेगा, फिर पहुंचाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें थी जो कि एलिमिनेट हो गई हैं एंड एक धीरे धीरे एफिशिएंट वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में हमने देखा था कि हम लोग ऑफिस में बैठ के लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, घर से काम वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट लाया गया था। लेकिन अब वैसी कोई समस्या आती है वर्क फ्रॉम होम की, वैसे मैं चाहूंगा नहीं आए, लेकिन ई फाइल सिस्टम ने वो आपको एक आधार दे दिया है कि घर बैठे भी लोग आपको ये वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईसी के साथ में हमने आधार बेस्ड 2 टेक्नोलॉजीज को यूज लिया है। एक तो है हमारी ई केवाईसी, जिससे कि जो आवेदन करता है उसकी आपको उसकी डिटेल्स मालूम पड़ जाएंगी बायोमेट्रिक, और साथ में ही ई साइन। तो राजस्थान शायद तक मेरे हिसाब से पहला स्टेट है जिसने कि वाहन में ई साइन का उपयोग लिया है और साथ में डीएससी का भी उपयोग लिया है। तो ये एक फाउंडेशन ब्लॉक हो गया है जो कि अब सिटीजन को हमसे, जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा 2021 के जब बजट घोषणा है, हमने टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट और परमिट को ई साइन आधारित जारी करने का घोषणा कर दी थी। तो आज सिटीजन को ये दोनों ही चीजें घर बैठे ही परिवहन पोर्टल पे इजीली डाउनलोड कर सकता है, उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं, प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में इस साल की बजट घोषणा में हमने आरसीडीएल को भी ईडीएल ईआरसी की घोषणा की गई है, जो कि हम अगले कुछ दिनों कुछ सप्ताहों में एनआईसी की मदद से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे आमजन को ये रहेगा, विश्वास और जनरेट होगा कि आपने आज आपका डीएल का सुबह टेस्ट दे के आए हैं और शाम तक आपको आपका ईडीएल आपके ई वॉलेट पे या फिर आपके डिजी लॉकर पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे इजीली मिल जाएगा, जो कि पहले संभव नहीं था क्योंकि आपको कई सप्ताहों तक वेट करना पड़ता था कब मेरा कार्ड प्रिंट होके आएगा, कब मुझे मिलेगा। उससे पहले आप सिर्फ एक प्रिंट आउट लेके हाथ में चल रहे थे। तो इस तरह के हमने कई प्रयास किए हैं। साथ में जो ई ग्रास एनआईसी के द्वारा जो ई ग्रास की हमें सेवाएं दी जा रही हैं, उसमें भी हमने काफी सरलीकृत किया है पिछले 2-3 सालों में कि अब हमारे वाहन सारथी के माध्यम से ही वहाँ जो पेमेंट जनरेट होता है वो पे करेंगे, ना कि आप ई ग्रास पे जाके सीधे, जैसे लेट से मैं एग्जांपल लूंगा कि आपका टैक्स बनता है वाहन का 10,000 रुपए, लेकिन पहले ई ग्रास पे आप 2-2 हज़ार रुपए देके भी 5 चालान भर दोगे तो उसका डिफेसमेंट करना वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि साहब आपने कौन से चालान जमा किए, वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग व्हीकल के हैं नहीं हैं। तो वो हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको वाहन पे और ई चालान पे पिछले 2 वर्षों में बंद कर दिया। साथ में अब विभाग प्रयास कर रहा है कि जो अभी हम अमाउंट हमारे कैश काउंटर्स हैं उनको भी बंद करें ताकि विभाग पूरा कैशलेस हो जाए एनआईसी की हेल्प से। इसके अलावा जैसे हमने एक वीएलटीडी की बात की थी जो कि न केवल हमारे एनफोर्समेंट में है, एक्टिविटीज में हेल्प करेगा कि कौन सा वाहन कहाँ ट्रैक कर रहा है, इसके अलावा आमजन की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में विभाग ने, जैसे कि मैं रोडवेज का एग्जांपल लेता हूँ कि हमारी 4,000 सरकारी बसेज हैं, तो उनमें लगभग हमने 300 वाहनों में रोड सेफ्टी सेल से जो फंड मिला है लगभग 10 करोड़ के आसपास वो लगा दिया। बाकी जो 3,500 वाहन उनमें स्टेप बाय स्टेप लगा देंगे ताकि जो रोडवेज, राजस्थान रोडवेज है जो कि सरकारी उपक्रम है और जनता चाहती है कि वहां से उनको सुरक्षित सेवाएं मिलें, तो न केवल उनको कोई समस्या होगी तो पैनिक बटन दबा सकते हैं, इसके अलावा इसके माध्यम से हम ड्राइवर्स का बिहेवियर भी मतलब फर्स्ट टाइम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, ताकि हम कैसे हम और बेहतर ड्राइवर बना सकते हैं कि हमारे 4,000 ड्राइवर्स का डेटा रहेगा जिसको हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं और हमारे बेटर ड्राइवर बिहेवियर की तरफ कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हैं। थैंक यू रोहतास जी, थैंक यू वेरी मच।
there is paucity of time and we have one more panelist. So I would request now Sri Vineet Kumar Ji, DGM SBI. So what role SBI has played in the transport sector? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज इस मंच पे हमें यहां पर आकर बोलने का मौका दिया और आज के इस समिट में पार्टनर करने का मौका दिया। मैं साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन चालान और उसके ऑनलाइन पेमेंट के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी करी। यह प्रोजेक्ट 2019 में मिस्टर पंकज सिंह के पहल के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया। बहुत सारी डेलिब्रेशंस हुई और एनआईसी की टीम से हमें जो सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम विद इन 8 मंथ्स इस प्रोजेक्ट को हम डिलीवर कर पाए। मई 2020 में हमने ऑनलाइन चालान का थ्रू पाइन लाइव मशीन्स ये सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड करवाया। उस टाइम पे कोविड के दौरान हमें ये भी महसूस हुआ कि अकेला डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अकेला इन्हीं से ही पेमेंट संभव नहीं है, हमें यूपीआई के ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो यूपीआई के ऊपर भी गए और मई 2022 में हमने यूपीआई भी हमने लाइव किया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यूसली हम टाई अप में हैं और जहां भी हमें कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो एनआईसी की टीम हमेशा फोरफ्रंट में रहती है उसका रेजोल्यूशन के लिए और जितनी जल्दी हो सकता है हमें रेजोल्यूशन उनके मिल जाते हैं। हमने इनिशियली 4000 मशीन्स का एमओयू किया था और 4000 मशीन्स में से अभी तक 1500 मशीन हमने डिप्लॉय की हैं। छोटे स्केल से लेते हुए अभी तक हम लगभग 500 चालान्स के ऊपर पहुंचे हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट हमें रिसीव होता है। अभी हमें बहुत आगे जाना है और जो 1500 मशीन्स हैं इनको 4000 मशीन्स तक लेके जाना है। इसमें सर कुछ इशू है और मेरा एक सुझाव है, क्योंकि जहां कमिश्नरेट नहीं है, अकेला जयपुर और जोधपुर को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह के ऊपर एएसआई से नीचे किसी के पास अथॉरिटी डेलीगेट नहीं है चालान करने के लिए। अगर ये अथॉरिटी नीचे डाउन द लाइन डेलीगेट कर दी जाती है तो मैं समझता हूं कि ये आपका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स में पैन इंडिया नंबर 1 पे रहा है और यहाँ पर भी ऑनलाइन चालान जो भी होता है वो सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। इस पैरामीटर पे भी डिपार्टमेंट पैन इंडिया नंबर 1 पे रहा है। बिग क्लैपिंग फॉर द डिपार्टमेंट। और ये तभी संभव हो पाया, हमारी एनआईसी की टीम ने हमें जो सपोर्ट किया वो शायद सपोर्ट वंडरफुल रही। मैं अधिक नहीं, समय की पॉजिटिव है, लेकिन मैं अपने स्टेट बैंक की तरफ से ये एश्योरेंस दिलवाता हूँ सर जहां भी स्टेट बैंक लगता है आपके साथ खड़ा हो सकता है, वी विल बी देयर सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vineet Kumar ji. Thank you very much. So, the topic of panel discussion was modernization of e-transport and building trust, and then leading to the road safety. And this topic has been put up in Revenue Summit. So, to sum up how this complete modernization of e-transport application and building trust in citizen as well as in government and leading to the safety is going to impact revenue. So, from my understanding, there are two parts. Revenue generation, which we can see directly. There are huge revenue generation which is not seen directly, which is indirect revenue generation. Leading to that road safety, if ma'am said that when we lose human lives and then there is no evaluation. Modernizing those things, like by using the IRAD application, we are integrating many departments at one platform. Now, road transport department, health department, police department, insurance agencies, everything is linked. So the accident victim will get the prompt health facility. The case will be filed by the police. Even the court is also being involved, so that litigation issue will be solved fast. The person will get insurance fast. So the
things will move so fast, then definitely the burden of going here and there and losing the money will definitely save revenue. Moreover, the e-transport services which has been now moved to the mobile, and the completion time of any services has been reduced drastically. The person need not to move to the RTO office now at all. That person can avail each and every services of e-transport from his home. So you can see the person need not to go out, then he will not take out that vehicle. When he is not taking out the vehicle, there is a saving of petrol, diesel. There is a saving of, there is a reduction in carbon dioxide. Finally, it is going to give us the healthy environment. The government will buy less petrol, means government revenue will also generate. So if you see, if we get some direct revenue, multiple of time that the indirect revenue we generate through modernization of the applications. I would thanks each and every panelist giving so insightful into that topics. Thank you, everybody. Thank you. A big round of applause to each and every panelist. Thank you.